क्या लगता है आपको ये, डू यू थिंक दिस इकोसिस्टम नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट? मतलब पहले तो लोग डिस्करेज भी करते हैं, बात नहीं करते हैं, रिजल्ट आ जाता है तो बस कि बस अब तो आप ही हो जो हो। तो 3 प्रीलिम्स आप जब फेल करते हो, आप एक मेंस फेल करते हो, सो देन इट स्टार्ट्स टू बिल्ड अप, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि मैंने क्या किया ये लाइफ में। मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी लेके जाऊंगी, तो वो वाला सबका ही सबका रहता है फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में मैं रैंक 1 रैंक 2 पे भी नहीं, रैंक 1 चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट पे चाहिए। हर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं नाम से डिस्कस हो रहा हूँ कि ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, इसका थोड़ी रिजल्ट आ सकता है। There have like 1000 pressures कि अरे शादी कर दो, अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, अरे और नहीं आएंगे। जैसे मैं कहीं पे जाती थी, मतलब मैं रोड पे भी चल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं मतलब मैंने वो नहीं, मतलब मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि ना कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं कि इसका हो नहीं रहा एग्जाम, ठीक है, बट कोई नहीं सोच रहा, तो मैं खुद को ही खुद से सोच के परेशान कर रही होती थी। तो पहले आप लोग प्लीज खुद को इंट्रोड्यूस करिए, एंड इन द स्पिरिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी प्लीज टेल अस इफ यू आर पार्ट ऑफ सारथी आईएएस कोर्सेज, डिड दे हेल्प यू। बस ये शुरू में करेंगे, फिर स्ट्रैटेजी वगैरह की कोई बात नहीं होगी पक्का, फिर आराम से बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Hi sir, very grateful to be here. My name is Vanaj Vidyan. I am ranked 278 in the CS Civil Services. This was my third attempt, second mains and first interview. I am a lawyer by training, मैं भी कोर्ट से ही आ रहा हूँ. And I studied from National Law University, Lucknow, 18 to 23 batch. I was the gold medalist there. हाँ sir, I believe कि preparation के साथ कुछ ना कुछ चलना चाहिए. So I pursued my masters in law along with the subsequent preparation. So I did my LLM from DU. I was again the gold medalist. So God has been very kind, sir. Right. And just one more thing, I am also the National Youth Icon. So I was awarded by Prime Minister sir last year, and this year President ma'am had invited me for the Republic Day at home reception. But sir, I've seen the system in some ways on behalf of the youth, and now getting to work, very exciting. Right. मैं बता दूं कि he was not part of any Saarthi IAS courses. He's just associated with us for the interview. But you're very transparent about it. I think Nancy अब आप पे And sorry, one thing I would like to add is कि मैंने सर के videos हमेशा देखे हैं. They've been, I have followed them to the T when it comes to strategy, because they've also functioned as a reality check. जब मैं slog कर रहा होता तो कई बार आपके videos को देख के लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, and I have to do well. So very grateful, sir. Thank you. Nancy. Hello sir, and hello everyone. This is Nancy Singh, and I secured All India rank 34 in UPSC CSE 2025, and this was my second attempt and second interview, second mains. So I was a part of Write Smart course of Shivin sir, and this really helped me in inculcating keywords, especially for GS1 and GS3, I would say. So I'm really thankful to Shivin sir and his team for his guidance and support. You don't have to talk about me third. Yes, sir. So, but I'm thankful to Shivin sir and the whole team of Saarthi IAS, and I was also associated with YouTube videos of sir, like active recalling sessions for prelims, etc. So, Prachi, it's up to you. My name is Prachi Hani. I have secured rank 28 in UPSC CSE 2025. I have been associated with Saarthi IAS in programs like MMP Plus and Write Smart courses of Shivin sir. मैं सिविन सर को तब से देख रही हूँ जब सर एनोनिमस वीडियोस बनाते थे यूट्यूब पे, और जब मेरा 2022 वाला अटेम्प्ट था तो मैं बैठ के सोच रही थी ये लड़का जैसे सॉल्व कर रहा है, मैं भी तो ऐसे ही सॉल्व कर रहा है, मैंने तो मेरा क्यों नहीं हुआ, मतलब उस टाइम मुझे पता ही नहीं था क्योंकि सर एनोनिमस वीडियोस बनाते थे, तो मैं मैच करती थी क्योंकि सर आपने 2022 वाला पेपर सॉल्व करके दिखाया था, तो मैंने देखा था कि मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी ऐसे ही किया। देन सर का रिजल्ट आया, देन मतलब सर वाज लाइक अ गाइडिंग फिगर फॉर मी। सर ने हमेशा जो बातें बोली हैं मैंने वीडियोस के थ्रू मतलब मुझे फॉलो किया, एंड आई थिंक सर की गाइडेंस की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, तो सर थैंक्स अ लॉट। Thank you. You are here only because of yourself, all of you. आप क्या हैं? My name is Sakshi Saxena. I have secured a 151 rank in UPSC this year in 2025, and I have been associated with sir again from the time he was anonymous. Right. And I remember जब सर का रिजल्ट आया था, so he had posted a video just before the result. Right. And it just meant so much to me, especially जब मेरा रिजल्ट आने वाला था. So sir, I really Right. want to thank you for that. Because like I think you introduced mental health in the whole ecosystem, and which is so important. Right. So really thankful for that. I have taken the Write Smart course of Saarthi IAS, and I think the templates really helped me and really helped me write smart in the exam itself. So it saved me a lot of time, and also it really helped me in revision. Right. Especially just like one day before the exam,
if you have the right smart notes, you can, and they are highlighted obviously, so you can just quickly go through everything, and that's really helpful. So I'm really grateful for Sarthi IAS. And also sir, you've said that we should not mention interview guidance, but I think that played a really important role in my journey. I got 208 in interview. That's amazing. I think आप सब लोगों के इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं. Right. And sir, you had frisked my DAF for the keywords, and you had said ki now I think all your interview would rotate around your DAF, and it really did. Like I think 90% of the questions were from my DAF, and that really made a difference. So really grateful. Thank you. Sir, I'm Harshvardhan Ashok. I am rank 424, and this was my last attempt, second interview, third mains. So it has been a long journey, but I was associated with Sajal sir for the past 3-4 years. So he has been guiding me with my prelims. तो जब से सजल सर ने गाइड करना शुरू किया, प्रीलिम्स नहीं रुका. मेंस के आंसर्स उतने अच्छे नहीं होते थे मेरे, बट वो रिफाइनमेंट उन्होंने दिया हर बार, ऐसे इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी को रिफाइन करने का. सो दैट एक्चुअली प्लेड आउट. आई फेस 2 इंटरव्यूज. आई गॉट रैंक ऑल्सो दिस ईयर. और सर आई वॉज विथ मेंस टेस्ट सीरीज विथ राइट स्मार्ट. सो दैट कीवर्ड अंडरस्टैंडिंग, द डिमांड ऑफ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी हेल्प किया वो 2 महीने का जो पूरा शेड्यूल रहा उसमें. सो दैट हेल्प मी इन राइटिंग क्वेश्चंस, लाइक आंसर्स, and I suppose I have improved my GS ranks. The mark sheet is not out, but I have this confidence that I have done it. And so interview के लिए भी it was a very good like Sajal sir guided me in this DAF filling. And a lot of people say that you have written too much in your DAF. बट सजल सर ने मुझे वो कन्विक्शन दिया कि नहीं, तुम लिखो ये चीज़ें, कीवर्ड्स आएंगे, उनको प्रिपेयर करो, और इट विल गिव यू दैट एज. एंड सर वो कॉन्फिडेंस जो बिल्डअप हुआ मेरा अंत तक, it was because I had good control over my DAF, and it was because I had so many keywords in that. So that really helped me a lot. I scored 200 and I'm very satisfied with my interview. तो यार आई थिंक स्टार्ट करते हैं टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. आई थिंक आप लोगों ने वो बात करी ही है, एंड आई थिंक आई वांट कि हम इस पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें. ये कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, कभी भी कोई भी बीच में बोल सकता है, कोई वो नहीं है. क्या लगता है यार आपको, जैसे ये अभी आप लोग अभी रिजल्ट आया है, और ये वीडियो शायद बाद में अप्रैल में या मई में हम यूट्यूब पर डालें, बट रिजल्ट आया होगा तो आपको बहुत सारे कॉल्स आए होंगे, सबको ही आए होंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस के वगैरह. क्या लगता है आपको, ये डू यू थिंक दिस इकोसिस्टम नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट? मतलब पहले तो लोग डिस्करेज भी करते हैं, बात नहीं करते हैं, रिजल्ट आ जाता है तो बस कि बस अब तो आप ही हो जो हो, है ना. तो इस बारे में मैं चाहूँगा, कोई भी स्टार्ट कर सकता है इस बारे में आपको. Sir, definitely it needs to change. मैंने personally ये feel किया है because my journey has been the longest here. I was working, मैं एक working professional था. I worked in Maruti Suzuki as assistant manager for 2-3 years. उसके बाद when I left my job, I started for this journey. और it took me like all 6 attempts are exhausted मेरे लिए. And I also started late. So मेरी जर्नी भी थोड़ी लेट स्टार्ट हुई. जहाँ लोग क्वालिफाई करते हैं वहाँ से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. So people had this opinion, अरे इतनी अच्छी जॉब थी, छोड़ करके आ गया, क्या कर रहा है लाइफ में, ये तो कुछ नहीं करेगा. टेकिंग माय फादर्स नेम, इनका बेटा तो कुछ नहीं कर पाया, मेरा बेटा तो अमेरिका चला गया. सो दीज थिंग्स वर देयर, बट माय फैमिली स्टूड लाइक अ वॉल टू मी. फैमिली नहीं रहती तो मैं कुछ नहीं कर पाता. सो माय फादर ऑलवेज सेड कि टेंशन मत लो, मैं हूँ, जब तक मैं हूँ यू डोंट नीड टू वरी, जो करना करो. So that was there, but again sir, after 3 prelims आप जब fail करते हो, आप एक mains fail करते हो, so then it starts to build up. You start questioning yourself कि मैंने क्या किया है लाइफ में, and you drift away from your friends because all your friends are professionals. वो काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए. Honestly they're good friends, but even you don't like कि हर दिन उनको कॉल करके बोलूँ कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है. So you have to deal with everything on your own, and then you can't share with people. आप अपने रूम में isolated बैठे हुए हो. तो वो सारी चीज़ें सर एक पॉइंट के टाइम पर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगा मुझे, एंड दैट कॉस्टेड माई 1 or 2 अटेम्प्ट्स इन प्री ऑल्सो, इन मेन्स ऑल्सो. सो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, और ये चीज़ प्ले आउट हुई मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में भी. आई गॉट क्वाइट नर्वस, तो जिसकी वजह से ये जर्नी थोड़ी सी डाइसी रही सर मेरे लिए. तो एंड ये जो आप कह रहे हो कि पीपल स्टार्ट वैल्यूइंग यू अ लॉट, ये रहता है सर, ये मैंने खुद फील किया है अभी. When people questioned me, made fun of me, और said अरे सब कर लेते हैं, ऐसा सबका थोड़ी हो जाता है. Now they are congratulating, अरे बेटा तुम, हमें तो पूरा पता था तुम कर लोगे. तो मतलब
this has been like. सर ये वाली बात जो इन्होंने बोली, सो आई ऑल्सो फेस द सेम थिंग. नाउ दे आर सेइंग कि बचपन से ही क्वालिटी देख ली थी ये तो, और जब तक ये था तो बोल रहे थे कि अच्छा अभी जाओ भी पता चलेगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा. एंड नाउ दे आर लाइक कि ओके हमने देखा था यू वर गुड इन स्कूल सो अब तो कर लोगे. कमिंग ऑल द वे एंड सेइंग कि हाँ पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करें. So that is why I never went home. I used to go for just the festivals. Maybe I used to skip Diwali or I used to go on Holi. So I used to do like that. I used to just go for one festival for the past 4 years. तो जैसे मेरे को ये लगता है कि अगर आप साथ में कुछ कुछ करते रहते हो यूपीएससी के साथ तो शायद ये चीज़ कम होती है. जैसे आप बता रहे थे कि आप यू बिन प्रैक्टिसिंग, अभी भी कोर्ट से आ रहे हो. तो बट इज दैट डिफिकल्ट कि साथ में आप दो चीज़ें मैनेज कर रहे हो? वहाँ पे कोई चैलेंज तो रहा होगा. Sir, actually practice though I started after my mains. I was sure कि again this is also dealing with my mental health only, sir. I decided कि मैं 3 attempts would be my maximum full-time attempt. This was my 3rd attempt. So right after mains, in fact right after the interview, I was like I'm going to start practicing. And in fact after mains ही मैंने कुछ ना कुछ इस तरह का start कर दिया था. क्योंकि सर अगर मैं अपने आप को time देता जाऊँगा तो जैसे सर ने भी बताया कि you start comparing yourself to your friends. You start comparing your lifestyle to them. And I also think sir ये ना हम अपने ऊपर ये pressures लेते हैं. Like all of my friends used to think कि ये बंदे में like they would respect my hustle. They would think this person is following his dreams. And we would be thinking हम कुछ नहीं कर रहे हैं और देखो ये लोग पैसे कमा रहे हैं. तो we take these pressures upon ourselves. So I just think mental health is a very important part of this ecosystem and just doing something along the sides. For me it was my masters in law. It just meant कि मैं कहीं जा सकता हूँ क्लास में. I would meet people where nothing UPSC का कोई बात नहीं करनी है. I would just participate in some extracurricular sports, खेल लो, कुछ भी कर लो. And that really ensured कि जब मेरा second pre नहीं हुआ था, after clearing the first pre and second pre नहीं हुआ, then it was very difficult to pick myself back up. But ये भी पता था कि 3 तो देने ही देने हैं. तो किसी ना किसी तरह से सर it happened. तो पहले डिसाइड कर लिया था कि 3 ही अटेम्प्ट दोगे? हाँ सर, ये मेरा था कि 3 full time दूंगा. Like I would not start working until 3 attempts are fully done. Right. तो प्राची ये मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाहता था, जैसे आप बीपीएससी भी साथ में दे रहे थे एंड यू क्लियर्ड इट आल्सो, अभी भी कह रही थी मैं एक बार रिजल्ट चेक करूंगी. तो 2 एग्जाम साथ में मैनेज करे आपने, राइट? वर यू आल्सो डूइंग समथिंग ऑन द साइड एंड इवन इफ यू वांट ये 2 अटेम्प्ट मतलब 2 एग्जाम साथ में मैनेज करना टफ होगा बिकॉज लोग बाहर से कह रहे हैं सिलेबस सेम है. वी ऑल नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट thing to go and attempt state PCS. Yes sir. So what was that experience like? Yes sir. मेरे लिए ना वो एक चीज़ थी कि मैं कॉलेज में और स्कूल में हमेशा से अच्छी स्टूडेंट थी. तो फिर वो अचानक जब मेरा ऐसा ड्रीम था कि मैं सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी लेके जाऊंगी तो वो वाला सबका ही सबका रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रैंक 1 रैंक 2 पे भी नहीं, रैंक 1 चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में चाहिए. हाँ तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मतलब बहुत डिवास्टेटिंग लगा था. फिर सेकंड में लगा कि चलो मतलब कुछ तो गलतियां हो रही हैं जो मैं थर्ड में कर लूंगी. बट जब थर्ड नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब ना ये मतलब मेरा पूरा वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है. मतलब मुझे अपना सेल्फ वर्थ इतना क्वेश्चनिंग होने लगा ना मेरे खुद के दिमाग में कि ये तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं कहाँ थी, कैसी सी हो गई हूँ मैं. तो ऐसा तो मुझे लगा कि नाउ आई नीड टू पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ समवेयर. तो फिर उस समय बीपीएससी की वैकेंसीज आई थी, जैसा आपने बोला कि बाहर से देख के लगता है कि सेम ही एग्जाम तो है, बट हर स्टेज पे चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो वो प्रिपरेशन डिफरेंट होती है क्योंकि क्वेश्चन नेचर वगैरह डिफरेंट होता है. तो जब मैंने बीपीएससी का पेपर देखा तो मैंने देखा कि प्रीलिम्स में थोड़ा फैक्चुअल पूछते हैं वो चीज़ों को. तो फिर मैंने बोला कि नहीं मुझे 1 महीना तो उस पर देना ही है. तो जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मैंने 1 महीना डेडिकेटली प्रीलिम्स को दिया. फिर वो जब मेरा प्रीलिम्स निकला तो फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस पे आया कि चलो एक प्रीलिम्स निकला तो चलो यूपीएससी में भी देयर इज समथिंग हो मतलब कुछ तो हो रहा है मेरे से, ठीक है. देन फिर मेंस में देयर वाज सिमिलर. उसमें एक चीज अलग से होता है कि आपको कुछ बिहार स्पेशल चीजें करनी होती हैं. तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो उन्होंने बीपीएससी क्लियर करा था तो उन्होंने मुझे हेल्प करा. बट मैं ये कहूँगी कि क्योंकि वो अलग एग्जाम है तो अगर आप ये सोचेंगे कि आप यूपीएससी प्रिपरेशन की वजह से वो क्लियर कर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी. दैट विल हेल्प यू बट दैट इज नॉट सफिशिएंट. तो थोड़ा तो एक दूसरे टाइम फ्रेम में थोड़े टाइम के लिए अलग प्रेशर भी रहता है, जाना होता है. हाँ वो चीज़ करनी पड़ती है. तो बट वो चीज़ जब आप कर लेते हो ना तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो चलो बहुत दूर की बात है. वो जो इमोशनल वो आता है ना कि ओके मैंने ये कर लिया, नाउ आई कैन फील माय वर्थ अगेन. तो मुझे लगता है कि वही चीज़ पॉजिटिवली मैंने 4th अटेम्प्ट में काम की क्योंकि मैं बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम देने गई थी कि देयर इज समथिंग एट विच आई कैन फॉल बैक अपॉन. तो मैं बहुत
वो होके गई थी कि चलो मैंने दे दिया है, अब मैं वापस दूँ। और इंटरव्यू में भी यही हुआ कि मुझे था कि मैंने तो एक फॉर्मल बोर्ड के सामने इंटरव्यू दे रखा है, तो मतलब वो था कि मैंने वहाँ पे गया तो एक सिमिलर एक्सपोजर मुझे मिलेगा। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करी और मैं सजेस्ट करती हूँ सबको कि अगर 3 अटेम्प्ट्स के बाद आपको लगे तो एक सेफर ऑप्शन पे जाना चाहिए। कि वही जैसे मैंने बोला ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत दूर की बात है, वो जो एक सेल्फ वर्थ वाली चीज़ होती है ना कि आप वो परेशान नहीं हो रहे हो, मतलब हमेशा से लगता रहता है कि मेरे से कुछ नहीं, वहाँ पे वो बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक वो सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्रीमेंटल सक्सेस है एग्जाम में। प्री हुआ तो आपको लगता है यार चलो कुछ अचीव किया मैंने, फिर मेंस आता है, फिर मेंस हो गया तो आपको लगता है कुछ अचीव किया मैंने, फिर इंटरव्यू आ जाता है, वहाँ आप बाहर हो गए, वहाँ फिर लगता है यार यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो ये मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे आप RCA में थे, यू वर स्टेइंग इन जामिया एंड वर इन द RCA, तो वहाँ तो सब साथ में आई एम श्योर UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, तो जितना आप मुझे बता रहे थे आई थिंक यू could not clear your first 2 prelims. Yes, sir. तो उसके बाद what was the mental health experience like? Because difficult होता है यार, you have to give the same thing again, you have to wait for 1 year. तो क्या था वो experience? So it was very tough. जब 24 का pre नहीं निकला, I really felt bad. And I had given RCA का entrance at the same time and I got in. So my parents said कि नहीं, you should go. But I think RCA really picked up my mental health. And as she also said and mentioned, state PCS really help you in that. So RCA really promoted me to give state PCS. And I gave BPSC and UP PCS both. And मतलब जब पहली बार आई रिमेम्बर जैन में आया था रिजल्ट, जैन 24 में रिजल्ट आया था प्री का BPSC का, that was the first time because it's such a onion peel kind of exam. Right. जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलते you're like प्री निकल जाए, बस एक बार प्री निकल जाए. So the moment that BPSC prelims happened in January 25, तो I felt कि oh now I think I can do this. And then UP PCS का प्री निकला and then subsequently एक momentum जो कहते हैं that developed. So I think that momentum is actually a psychological momentum. कि yes I can do this, and then it helps you build confidence in yourself and then your abilities also grow on that foundation. Right. So I think that happens. And sir, I think like talking apart from this about mental health, तैयारी के टाइम जब तक you are not selected, mental health issue is definitely there. But I would really like to talk about the mental health issue after getting selected. Okay. Because the preparation is such that you are so socially cut off from people. Right. And then the result comes and like it came at 2:11. 2:10 tak nobody cared. You were all alone crying in your room, and you have friends definitely. RCA gave me friends who were always there for me and always supported me in my mental health and in every aspect for that matter. But 2:12, it's like everyone wants to talk to you, and it might seem such a small thing, but it's just too much to take in. And it's difficult to talk to people that much because you're just not used to it. And अगर आप नहीं करोगे, people would think कि oh इसमें तो ego आ गया है, या you know she's rude or she is high-headed now. So that guilt is there, and then that social pressure is also there. So that also I think really impacts your mental health. I think मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बताता हूँ. तो जब मैं 22 का अटेम्प्ट दे रहा था ना, तब तक अनोनिमस चैनल था. तो ये होता ही है ना, जो स्टेज आपसे क्लियर नहीं हो रही होती, उसमें आप जब क्लियर कर लेते हो तो आपको लगता है कि मैंने तो कर लिया कुछ अंदर. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस हो गया. तो मुझे ऐसी खुशी हो गई ना उस दिन कि भाई अब तो मैं भूल गया हूँ कि अभी भाई इंटरव्यू है. ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, तो बस हो जाएगा, देख लेंगे. मैंने अपना फेस रिवील कर दिया, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया, वहीं क्लैरिटी फॉर UPSC वहीं से आया. बट व्हाट आई डिड नॉट एंटिसिपेट वाज कि जब मैं इंटरव्यू देने गया, फिर उसके बाद इंटरव्यू हो गया. इंटरव्यू के बाद मैं फिर पढ़ाने लग गया था. मैंने एक्चुअली तब सबसे पहले साइंस एंड टेक पढ़ाया था अपने रिजल्ट से पहले. इंटरव्यू के बाद रिजल्ट से पहले, तब मई में रिजल्ट आता था. भाई इंटरव्यू वाले हो गया सब, लास्ट इंटरव्यू हुआ, अब रिजल्ट की बातें चल रही हैं, रिजल्ट आने वाला है. हर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं नाम से डिस्कस हो रहा हूँ कि ये तो यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, इसका थोड़ी रिजल्ट आ सकता है. ठीक है, और इसका कैसे होगा, ये तो पढ़ाते रह गया वगैरह, वट। तो अब हो जाता है ना, एक दिन पता होता है वो टेलीग्राम से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आज तो रिजल्ट आना है, यू नो इट इज गोइंग टू कम टुडे, व्हेन यू डोंट नो. तो वो पता चल गया था कि कल आएगा. मैंने सोचा है मैं काम करता हूँ, मैं सुबह 9 बजे तक जागता हूँ, सोता ही नहीं रात को. मैंने वेब सीरीज देखी, गेमिंग करी, रिजल्ट आएगा तो सो जाऊंगा. जब उठूंगा तब तक आ चुका होगा. सुबह सोने से 7 साढ़े 7 हो गए थे, बहुत नींद आ रही थी. सोने से 2 मिनट पहले मैंने कहा एक बार दोबारा टेलीग्राम
उसमें क्या था, रिजल्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड, इट इज गोइंग टू गेट अपलोडेड टुडे। कोई ग्रुप था, रैंडम ग्रुप, मैं जानता भी नहीं कौन। आई हैव सीन द लिस्ट पर्सनली, डॉक्टर शिवन इज नॉट इन द लिस्ट एंड he deserves this because he is teaching, he is still an aspirant, although I feel I'm still an aspirant, but ये लिखा हुआ था। फिर मैं रोया हूँ यार, उसके बाद दबा के रोया हूँ। और वो जो आप अभी कोई मेंशन कर रहा था, वो 22 मिनट की वीडियो रिजल्ट से पहले की वीडियो के रिजल्ट आने वाला है, वो वीडियो की स्टोरी वो है, वहाँ पे बनाई थी वो वीडियो कि भाई आई हैव टू लेट दीज इमोशंस आउट। तो मुझे लगता है कि शायद खुद से अगर लोग बता देना ये कि यार इस दिन रिजल्ट आएगा, चाहे 2 दिन लेट दे दें, तो शायद ज्यादा खुश रहे। जब आपने वो इमोशंस वेंट आउट किए थे एंड देन आपका नाम आया, तो दैट फेल्ट वेरी पर्सनल कि वाओ। हाँ, एक्चुअली एक पर्सनल वे, क्योंकि मतलब लोग आपको, बहुत कम ही लोग होते हैं जो आपको अच्छा करते हुए देख सकते हैं, लाइक एवरीबॉडी जस्ट ट्राइज टू पुल यू आउट। तो वो इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मतलब सर, मतलब वो अचानक से हो गया, सर डिड इट, तो ऐसा वाला हुआ नहीं। और उसके बाद भी उस वीडियो पे भी आई थिंक जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैंने वीडियो बनाई थी। मैं आज भी वो बात बोलता हूँ कि यार प्रिविलेज तो रोल प्ले करती है। बिल्कुल सर, मतलब हम सब यहाँ बैठे हैं, यू आर ऑल पीपल हु हैव एक्सेस टू कोचिंग, राइट, इन वन वे और द अदर, ये अपने आप में प्रिविलेज है। इंटरनेट होना इंडिया में प्रिविलेज है। बिल्कुल। तो मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मेरा मन शायद पढ़ाने का है, ठीक है। उस पे भी किसी ने कमेंट करके, मुझे अभी भी याद है, मैंने डिलीट किया है वो कमेंट, मुझे भी याद है, किसी ने लिख रखा था भाई तेरी रैंक टॉप 10 आ जाती है अगर तू पढ़ाता नहीं, चुप कर, YouTube बंद कर और पढ़ ले। और तो ये मुझे लगता है कि लोगों का ना एक अलग सा अजीब सा एक ऑब्सेशन है एग्जाम के साथ। हाँ सर। मैं बाहर, उन्होंने कभी एग्जाम नहीं दिया है, उन्हें कुछ नहीं पता है एग्जाम के बारे में। यार एग्जाम एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है बिल्कुल ना। ऑफिसर बन के आप जो भी करोगे वो बिल्कुल डिफरेंट होगा इससे, उसका कोई लेना देना नहीं है इस प्रोसेस से, बट आई थिंक वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। एंड वो एक चीज़ है। एंड ये चीज़ मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा, जैसे यूएस आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, तो आपको क्या लगता है आपका बैकग्राउंड का क्या रोल है इन गेटिंग यू हियर? एंड एनी ऑफ यू कैन स्टार्ट, आई थिंक आपसे स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड का क्या रोल लगता है आपको कि क्या बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है एंड हाउ डज इट हेल्प? सर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बैकग्राउंड गोइंग बैक टू स्कूल, आई थिंक तो स्कूल में आई वाज इन DPSG गाजियाबाद, सो दे रियली रिगरसली ट्रेन्ड यू टू राइट। प्री बोर्ड ही 3 ले लेते थे, तो दैट उस टाइम लगता है कि ये क्यों कर रहे हैं, बट इट एक्चुअली हेल्प्स यू लेटर। तो इस टाइम जैसे पीपल हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज राइटिंग, तो वो आया तो, बट इतना नहीं आया बिकॉज स्कूल हैड डन दैट ऑलरेडी, मतलब आपका बेसिक एक तैयार है। देन फैमिली आई थिंक प्लेज अ वेरी बिग रोल, बिकॉज सपोर्ट करना अपने बच्चे को कि वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है is a very big thing, and it's a very big privilege in India, and especially more so for women. Yes. Because they're like, अरे they have like 1000 pressures कि अरे शादी कर दो, अरे ये लड़का बहुत अच्छा है, अरे और नहीं आएंगे, अरे PhD ही तो कर रही है. So there's like a lot of things. So family and parents really contribute. So that is one part. And then I think the background also. So many of my relatives, be it my mama, be it my mosi, be it my mosaji, even my mother, they have been in service with the government but not in civil services. So they obviously always wanted that कि एक बच्चा civil service में जाए. So that dream I think also plays a role. So and obviously financial factors do play a role. So these are all privileges that I at least had during my preparation. Right. Nancy, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पे about background and how it helps? Yes, sir. I would agree with the schooling wala part because I do have some friends and I see that I try to help them that okay they can write answers effectively, but then I would say that graduation wala part is not much important. But I mean it depends if you choose the optional graduation subject as an optional, then it can play a role, but the study, the academic part doesn't help that much. Right. And कई ना diverse ओपिनियंस में यहाँ पे इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तो ये देखा है जब रिजल्ट आ जाए एक ही बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है. Somebody who has a rags to riches story is the one that is the most important for the media to pick up. But expensive preparation, यार. Yes, expensive in terms of money, expensive in terms of time. Yes. And if you count opportunity cost, तो उसकी तो फिर कोई लिमिट ही नहीं. Huge है सर, huge opportunity cost. उसी पर्सपेक्टिव में आपसे ये बात कर रहा था कि मतलब you have to give up a lot
एंड उसके बाद भी हो सकता है ना हो, Yes, sir. राइट? बट आई थिंक एक्नॉलेजिंग दैट इज इम्पोर्टेंट। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि आप आओगे और हो जाएगा, Yes, sir. right? Sir, I have been living in ORN for the past 4 years. So I know that my parents have supported a lot. And उन लोगों ने कभी भी ये नहीं बोला कि तुमसे नहीं होगा, मतलब 4 साल में भी कभी एक ताना भी नहीं मारा होगा कि कुछ भी है। तो उन्होंने हमेशा कहा है कि होगा, सब ट्रस्ट करो खुद पे, तो होगा। तो उनके अंदर मैंने कभी सेल्फ डाउट नहीं देखा, दो आई हैड सेल्फ डाउट समटाइम्स कि होगा या नहीं होगा जब बिगिन करते हैं प्रिपरेशन, तो उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखा। तो आई वुड से कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सर आई वुड ऑल्सो से दैट फ्रेंड्स का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है। जो सेम फील्ड में है वो हमारा इमोशनल सपोर्ट बन के आगे आता है एंड दे अंडरस्टैंड कि हाँ हम उसी फेज से गुजर रहे हैं। सो आई वुड से कि हाँ जो अदर फ्रेंड्स हैं कॉलेज या स्कूल के, तो दे डू नॉट अंडरस्टैंड अ लॉट, बट येस जो इसी फील्ड में जैसे सपोज आप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सो वो उस फेज से गुजरे हुए होते हैं, सो दे डू सपोर्ट अस एंड बहुत हेल्पफुल रहता है। सो आई वुड से दैट। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, आई वुड लाइक टू ऐड कि एक चीज़ जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में, विच माई पेरेंट्स दे सपोर्टेड अ लॉट एंड बाद में फ्रेंड्स ने भी बोला कि एग्जाम ही तो है। और सर आप भी कई बार अपने वीडियोस में ये बोलते हो कि इफ यू फेल डज नॉट मीन यू फेल इन लाइफ, यू फेल just an exam, not even fail, you learn a lot throughout this journey, but ये exam ही तो है सर। और अगर ये समझ आ जाता है ना, then the stakes become lower, the pressure also becomes lower, and I think we'll be able to dissociate our self-worth from this. And secondly sir, इसी line में I would say कि अगर जो background वाला question था, I think this also relates to that, because what your background is educationally speaking, if it's a professional degree, like I come from a legal background, I'm a first generation lawyer, but still because I have so much love for the subject, I knew कि अगर ये नहीं होता है तो भी I would be doing something which I love. Absolutely. That really helped me sir कि जो मैंने बोला मैं 3 attempts बाद छोड़ दूंगा, I could come with this conviction because I knew that what I would follow might even be greater than whatever I achieved through this exam. Like that's a legitimate option that I would happily live my life through. तो I think sir ये दो चीजें जो है ना कि एग्जाम ही तो है और नहीं हुआ तो क्या, अगर इसका solution is something that is a road you love pursuing, then I think sir आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा ठीक हो सकती है। सर इट वाज रिवर्स फॉर मी बिकॉज आई नेवर वांटेड टू बी एन इंजीनियर। अच्छा। मेरे जनरेशन के लोग ऑब्सेस थे इंजीनियर बनाने के लिए एंड राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 11-12 आई सेड कि इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट वो शायद फैमिली फोर्स ही नहीं कर पाई। दे हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स विथ इट। उनको लगता था प्रोफेशनल डिग्री है तो उसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी रहेगी और जो भी रहता है उसमें। तो सर मैंने इंजीनियरिंग की बट वो मेरा पैशन नहीं था कभी, एंड यू कैन नॉट परसू समथिंग विच इज़ नॉट योर पैशन। सो पैशन वॉज पब्लिक सर्विसेज। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ एंड देन गाड़ी मुझे लगा कि मेरे पीछे ही जा रही है बिकॉज आई वॉज अ 9 पॉइंटर इन माई मतलब कॉलेज, फर्स्ट पर्सन टू गेट प्लेस्ड विद अ गुड कंपनी। काम में भी गया, ऑलवेज अप्रिशिएटेड कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो लगा कि सर जो मैम ने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आ ही जाएगा, बट प्रीलिम्स नहीं होता है, दूसरा नहीं होता है, तीसरा नहीं होता है। बट देन यू नो वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि मैं कर क्या रहा हूँ ना, पैशन हो पा रहा है, नथिंग टू फॉल बैक अपॉन, तो मैं क्या करूँगा। बट देन सर मेंस हुआ, फिर समथिंग केप्ट मी एंगेज्ड। मेंस हुआ, मेंस नहीं निकला, फिर इंटरव्यू तक आया, फिर वो नहीं हुआ, तो समथिंग केप्ट मी एंगेज विच पास्ट 3-4 years हैव बीन गुड बिकॉज आई कुड सी कि हाँ कर लेगा तू, इतना तो आता है, हाँ इतना तो आता है, बेकार नहीं हूँ। मेंस लिखा हूँ, इंटरव्यू फेस किया है तो बेकार नहीं। और सर आपकी जो वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग आपने भेजी थी, यार तुम लोगों ने मेंस लिखा बड़ी बात नहीं है, आई रिमेंबर दैट रिकॉर्डिंग। तो रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा ऐसा, वो बहुत बहुत अच्छा था सर। वो एग्जाम के एक दिन पहले जो आपने भेजा था, तो वो लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट आई थिंक यार अनसर्टेनिटी का बहुत रोल है, मतलब पूरा एग्जाम बहुत अनसर्टेन है। अभी आप लोगों की मार्कशीट्स नहीं आई है ना, वीडियो चाहे हम बाद में डालें। मैं अगर आप लोगों से अभी पूछूं ना कौन से पेपर में बेस्ट नंबर है, मैं श्योर हूँ सबका मिसमैच होगा। हाँ सर ठीक है, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने क्या था फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैं GS4 में छोड़ के आया था 4-5 क्वेश्चन और मेरा हो गया था, हाथ दर्द हो रहा था, लिखा नहीं रहा था। मेरे एंड में 96 मार्क्स आए। मैंने कहा लोगों को तो 120 भी आते हैं GS4 में। तो मैंने बहुत मेहनत करी इसके पे, ज़्यादा ही पढ़ लिया। आई थिंक 3-4 किताबें पढ़ ली। वो कौन से है वो हार्वर्ड के एक जस्टिस वाले लेक्चर्स हैं, आप में से किसने शायद माइकल सैंडल वाले, वो भी देख लिए। अगले साल गया GS4, सबसे ज़्यादा टेस्ट मैंने GS4 पे लिखे, अगले साल नंबर आ रहे हैं 85। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं GS4 में तो इस बार मैं तो मचा के आया हूँ भाई। और मेरी एक बैचमेट है गरिमा, जिनकी रैंक 2 है, उनके 140 है। ऐसा क्या हो गया कि भाई 55 नंबर उनके ज़्यादा है मेरे से। बट ये होता है राइट, ये अनसर्टेनिटी होती है।
और इसलिए आपने देखा होगा जिन लोगों ने राइट स्मार्ट वगैरह देखा है, मैं कभी GS4 नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता व्हाट आई डिड रॉन्ग। तो मैं नहीं चाहता वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो कि अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो क्या होगा। बट प्राची, I'd like to ask you this, that there is a lot of uncertainty in the exam, right? You don't know what's going to happen to you. अब तो इस बार they will come out with the answer key for prelims, नहीं तो वो भी नहीं होता था। आप अपने मार्क्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। Yes, sir. How did you deal with that? सर मैं पर्सनली तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मतलब मैं ये ट्राई करती थी कि मैं जब भी बहुत एंग्शियस हूँ तो मैं अपना वो स्पिरिचुअल वाली चीज़ों पे करूँ। और सर सेकेंड चीज़ हमें लगता है कि हम ना डैफ में फेल करते टाइम सब बस हॉबी पे ध्यान देते हैं और हम वो चीज़ छोड़ देते हैं रियल लाइफ में करना। बट अगर हम उसको रियल लाइफ में करें ना तो इट रियली इम्प्रूव्स योर पर्सनैलिटी अ लॉट, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी वाली चीज़ें तो हैं बट उसको हैंडल करना भी हमें खुद सीखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स योर कॉल टू गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो जब आप इन चीज़ों को ओन करने लग जाते हैं ना कि और मतलब सारी चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ देते हैं कि नहीं मैं मेरा ही कॉल था, मैं ही कर रही हूँ, मेरा करना है, तो वो एक पीस ऑफ माइंड में बहुत आता है और आप बहुत कूल कंपोज ग्रैटिट्यूड आने लगता है लाइफ में। मुझे लगता है कि जब से मैंने ऐसा सेल्फ क्रिटिसिज्म वगैरह करना छोड़ दिया ना तो मुझे एग्जाम की अनसर्टेनिटी से भी डर नहीं लगता था। मुझे लगता था कि ठीक है हो जाएगा, इट्स ऑल इन द प्रोसेस, इट्स ऑल इन द प्रोसेस। तो मैं ना मतलब ऐसे क्रिकेट से बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ। तो MS धोनी हमेशा ही कहते थे ना कि तुम्हें जो दिमाग लगाना है तुम प्रोसेस में लगाओ, रिजल्ट वाले दिन तो कुछ करना ही नहीं है ना, तो तुम बस प्रोसेस को सही करते जाओ। तो एग्जाम कितना भी अनसर्टेन हो, अगर आप प्रोसेस को सही करते जा रहे हो तो रिजल्ट मतलब लेट होगा बट आएगा एक दिन जरूर। मतलब मैं इसमें बिलीव करती हूँ सर, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। राइट, आई थिंक एक में ये चीज होती है स्पॉटलाइट इफेक्ट, कि आपको लगता है कि दुनिया आपको ही देख रही है। यस है ना, बिल्कुल, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, Exactly. बिल्कुल सर, नोबडी रियली केयर्स। Correct. बट आप अगर एग्जाम में कॉन्स्टेंटली हो, जैसे आपकी एक लॉन्ग जर्नी है, तो आपको जरूर लगा होगा एक वन पॉइंट कि यार एवरीबडी वांट्स टू नो कि अब मेरे रिजल्ट का क्या होगा। यस यस सर, है ना। हाँ तो लेकिन वो होता नहीं है जी। आई थिंक ये जो मतलब मेरे को तो ये लगता है कि सिर्फ एक UPSC नहीं करना चाहिए। मतलब कर लो 2 अटेम्प्ट तक, जब तक आपका तैयारी अच्छे से हो जाए, एक बार हो जाए फिर उसको सेट कर दो। मतलब वो भी करते रहो and do something. Yes, yes. And so how did you know manage that long journey? सर सॉरी, ये स्पॉटलाइट इफेक्ट सर जिसका रिजल्ट के बाद तो होता है। रिजल्ट के पहले भी होता है। जैसे आपने बोला ना कि बाकी को फर्क नहीं पड़ता है, बट जैसे मैं कहीं पे जाती थी, मतलब मैं रोड पे भी चल रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि ये इंसान क्या सोच रहा होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, और मैं मतलब मेरे वो नहीं मतलब मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि ना कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं कि इसका हो नहीं रहा एग्जाम, ठीक है, बट कोई नहीं सोच रहा, तो मैं खुद को ही खुद से सोच के परेशान कर रही होती थी। तो मतलब मुझे वही बोला ना, मैं लेटिंग गो ऑफ वाला थिंग्स जब मैं करने लगी ना, कि ये क्योंकि जर्नी मेरी होने वाली है, लाइफ मेरी होने वाली है, जॉब मेरा होने वाला है, मतलब जो भी कुछ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओन एवरीथिंग कि ये सब कुछ मेरा होने वाला है, आई नीड टू रिलैक्स इन लाइफ। तो बहुत अच्छा फिर पीस ऑफ माइंड आता है और सब कुछ बहुत मतलब लगता है कि सारी चीजें बहुत सही से स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है। मैंने देखा है कि जितना ज्यादा मैंने एंग्जियस होकर पेपर दिया है ना, वो उतना खराब हुआ है कि मतलब अब तो क्योंकि ज्यादा क्या बुरा होगा कि नहीं होगा, वो तो ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा वो खुश होके दे दो, तो वो मे बी वो अच्छा हो जाए। तो और वो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस बहुत वर्क करती हैं कि मतलब अच्छा सोचो, एकदम पॉजिटिव फील करो अपने बारे में, अपने मतलब मैंने तो ये देखा है कि मैंने बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज किया है और वो चीजें मेरे दिमाग में एक्यूमुलेट हो गई थी कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैंने जब उन चीजों को मतलब लेट गो किया ना, तो फिर वो सारे मतलब मैं अपने घर पे बोलती थी कि 2025 वाज द ईयर जिसमें मैंने 8 PDF खोले और 8 में अपना नाम देखा। तो वो वाली चीज जब मेरे साथ हुई ना, तो मुझे वो लगा कि मतलब ठीक है, तो वो वाली चीज करनी, और वो तभी हुई जब मैंने अपने बारे में पॉजिटिव फील करना स्टार्ट किया। सर, तो आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि आई एम दैट सेल्फ क्रिटिकल दैट आई वुड से आई हैव स्टिल नॉट ओवरकम इट। मैं वो सेल्फ क्रिटिसाइज करती रहती हूँ कि वो मेरा तो ये भी खराब हुआ था, मेरा तो ये भी खराब हुआ था, मैं तो कुछ नहीं करा है, मुझे तो कुछ नहीं आता है। बट देन फ्रेंड्स कम इन दैट. If you are very self-critical, I think friends are there to save you because they are the people who keep manifesting for you. So we were a group of 8 and sadly उसमें सिर्फ अभी मेरा ही हुआ है. But everyone was like rallying behind me. जो notes चाहिए, जो support चाहिए. I remember मतलब अगर मेरे आंसू को कलेक्ट किया जाए पूरे साल के तो एक छोटी रिवर तो बन जाएगी उससे. And they were always there to wipe my tears and you know कि नहीं हो जाएगा, देखो ये भी आता है, ये भी आता है. And
even after interview I was like बिल्कुल अच्छा नहीं गया, and ma'am was really like upset with me, and I don't think she approved any of my answer. तो most of my friends are like अरे 800 तो बन ही रहे होंगे मेंस में and this and that. So they were like always very supportive, and I think someone else manifests for you, and those prayers also really work. And ये बहुत important है क्योंकि समटाइम्स वी फील ना कि हम अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहते कि ये नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स को कैसा लगेगा, उन्होंने तो मुझे वो भेजा था, वो परेशान हो जाएंगे, तो वी स्टार्ट कि उनको भी सब कुछ ना बताएं ताकि वो क्या मैं स्ट्रेस फील कर, तो वहाँ पे फ्रेंड्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी ऑब्लिगेशन कि मतलब ये परेशान ना हो, ये तो मतलब वो वाला रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सब मेरा केस रिवर्स चला है इसमें. मेरे फ्रेंड्स मोस्टली या तो वो MBA करने गए और वो फॉरेन चले गए, तो US के साथ वो टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, यूरोप में जो है तो वो नहीं हो पाया. और जो फ्रेंड साथ में प्रिपेयर कर रहे थे उनके भी कुछ बैकग्राउंड का, जैसे आपने कहा, वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. तो कोविड के बीच में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, लाइक वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो करेंगे, बट दे हैड टू लीव आउट. उनको जॉब ज्वाइन करनी पड़ी, वो करना पड़ा. तो मैं बिल्कुल अकेला था और कोई फेलो एस्पिरेंट एज फार एज आई नो नहीं था क्योंकि मैं घर चला गया था वापस. तो कोई फेलो एस्पिरेंट नहीं था पास में. बट येस, पॉजिटिव थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो साथ में हुआ क्योंकि जब वंस प्री निकलना शुरू हुआ तो लगा कि यार बेकार तो नहीं हूँ, आता कुछ है. और ये कन्विक्शन थी लाइफ में कि कुछ तो मैं कर लूँगा, कि मैं मतलब इतना भी नहीं हूँ कि एक एग्जाम फेल किया तो उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ डिफाइन होगी. सर्टेनली इमोशनल अटैचमेंट रहेगा एग्जाम से, वो थोड़े से हिकअप्स रहेंगे इनिशियल 1 to 3 years में, बट कुछ तो मैं अच्छा करूँगा लाइफ में. तो ये बहुत अच्छी कन्विक्शन थी मेरे अंदर कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. वो जब भी करूँ, मे बी 50 years की एज में करूँ, बहुत क्लीशे लग रहा है, बट मोदी जी जैसा राइज कर जाऊं. जस्ट सेइंग, मैं आई यूज्ड टू से दिस टू माय सेल्फ कि मे बी मैं मोदी जी जैसा राइज कर जाऊं. ही वाज नथिंग बिफोर 2001 एंड ही बिकेम अ प्राइम, मतलब चीफ मिनिस्टर, एंड देन व्हाटएवर ही इज. तो मैं कुछ तो करूंगा अच्छा. तो दैट थॉट प्रोसेस केप्ट मी पॉजिटिव आफ्टर फेलिंग 3 prelims, and then it did not stop. प्रोसेस के लिए तो बहुत सेल्फ बिलीफ चाहिए यार. मतलब आई एग्री विद यू एंड इट्स ग्रेट दैट यू हैव दिस, बट मुझे लग रहा है यार ये तो दिस रिक्वायर्स यू टू कॉन्स्टेंटली थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ, है ना. बट वो तुम कैसे होगा जब आप फील कर रहे हो? सर शुरू में नहीं हुआ ऐसा, बट धीरे धीरे मैंने कल्टीवेट किया इस चीज़ को. एंड रामकृष्ण मिशन से सर मैं एसोसिएटेड हूँ, जैसे मैम ने कहा स्पिरिचुअलिटी. सो रामकृष्ण मिशन से मेरा बहुत पुराना एसोसिएशन है, बट कभी फुल टाइम या ऐसे कभी डेडिकेटेडली मैं नहीं रहा. बट जब मैंने धीरे धीरे वहाँ पढ़ना शुरू किया और मतलब उनके थॉट्स प्रोसेस को पढ़े, स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, और फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का भी मौका मिला. तो दे आस्क्ड मी वन डे, आई वाज जस्ट मूविंग अराउंड इन द आश्रम एंड दे सेड कि आप क्या करते हो, क्या पढ़ाई की है. वन ऑफ द मॉन्क्स आस्क्ड मी, आई सेड कि ये करता हूँ. नेक्स्ट डे ही जस्ट स्टॉप मी एंड सेड कि आप 2 घंटे बच्चों को दे सकते हो शाम में. आई सेड आई एम मोर देन हैप्पी टू डू दैट. तो मैंने वो किया और वो भी सर बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि आप अपने से हाफ एज के बच्चों से सब इंटरेक्ट करते हो, और दीज चिल्ड्रन आर रियली नीडी, उनको ज़रूरत है आपकी. और वो जब आपको देखते हैं कि अरे भैया इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भैया का प्रीलिम्स निकल रहा है, भैया का मेंस निकल रहा है, तो वो बच्चे मेरे बहुत बड़ा सपोर्ट रहे मेरे लिए. एंड इवन टुडे मतलब उनसे एसोसिएशन है. तो सर वो ग्रेजुअली शिफ्ट किया चीज़ों को, कि मतलब चीज़ों को हम बड़ा बनाते हैं. स्पॉटलाइट इफेक्ट आपने कहा, हमने बहुत बड़ा बना दिया. फेलियर हो गया, यूपीएससी नहीं निकल रहा है, क्या हो गया नहीं निकल रहा है. यार आई थिंक उसके लिए ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि यूपीएससी कैन नॉट बी योर लाइफ. यस, मतलब जैसे मैं मिलता हूँ यहाँ पे एस्पिरेंट से, तो मुझे बहुत ये लगता है कि यार और कुछ है ही नहीं, कि मेरी लाइफ का गोल है मुझे यूपीएससी निकालना है, बाकी सब हटा दो. ठीक है, आप हटा लो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक समथिंग ऑन द साइड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. यस सर. सर मेरा भी एक सजेशन है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, यू कैन स्विच योर जॉब, गो टू लेस डिमांडिंग जॉब, बिकॉज़ मारुति की जॉब वाज वेरी डिमांडिंग. वो लॉन्ग आवर्स थे, 9 o'clock to 7 o'clock फिक्स्ड वर्किंग था 5 days. तो साथ में प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी. बट हैड आई शिफ्टेड कुछ वर्क फ्रॉम होम या कुछ ऐसा टाइप का सिस्टम में रहता मैं, तो प्रोबेबली आई वुड हैव डन बेटर. राइट. बट डोंट लीव योर जॉब unless it is very demanding. Try shifting it, try doing something else. उसके साथ करो, it will be more helpful. Sir, थोड़ा सा मेरा perspective अलग है. Like I'm a very big proponent of this UPSC should not be your life. I completely agree, sir. But मुझे ये भी लगता है कि this exam I could not have cleared if I had not made UPSC my life for the first, at least the first attempt or the second attempt. I think 2 साल जरूरी है. हाँ सर. 2 साल की तो यार कॉलेज डिग्री जितनी प्रिपरेशन है. हाँ सर. 2 साल तो लगते हैं. इसको मतलब आई थिंक 1 year just to understand कि क्या करना है. मतलब मैं I started preparing in 2019. Second attempt does not mean 2 years. It means 4 years or whatever. पहले 2 साल तो हवा ही नहीं होती कि हो क्या रहा है. आप नोट्स बना रहे हो, आप लेक्चर्स देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है. मतलब कुछ आपको पता है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं 4 घंटे. सबसे बड़ी दिक्कत होती है रीडिंग स्पीड की.
कि मैंने पास किया, मैंने जॉब किया, तो पढ़ना लिखना सब बंद था, लिखना भी बंद था, इनफैक्ट पढ़ना भी बंद था। बट जब मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, 1-1.5-2 घंटे लगते थे एक न्यूज़पेपर पढ़ने में। एडिटोरियल्स तो लगता था यार कैसे खत्म होगा ये, बट वो ग्रेजुअली 2-3 साल लगते हैं उसको ठीक होने में। लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पेपर खत्म हो जाता है, मैक्स टू मैक्स 1 आवर कभी लग गया तो लग गया, तो वो खत्म हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। मैं जब अपना पहला पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो सब बोलते थे हिंदू पढ़ो, मैंने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों उठाए और मैंने दोनों के सोचा मैं नोट्स बनाऊंगा। तो पहले महीने मैंने दोनों पेपर्स के नोट्स बनाए थे और मैं डिजिटली बनाता था। वो फाइल मुझे लगता है कुछ नहीं 50 पन्नों की से पहले 50 पेजेस की, मुझे लगा ये तो हो ही नहीं सकता है। देन आई स्टॉप्ड और फिर सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था और कोई नोट्स नहीं बनाता था। तो मैं तो हैंड रिटन बनाता था, डिजिटल मैंने कोशिश की बनाने की, ना मैं उसको पढ़ पाता था और ना मैं यूज कर पाता था। उसमें सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने लगा, मैंने फेंका उसको और मैं हैंड रिटन नोट्स ही बनाया उसके बाद से। मुझे तो करंट अफेयर्स बहुत डर लगता था, हमेशा सोचती थी कि सिर्फ स्टैटिक आई बी एबल टू डू हाउ टू डू करंट अफेयर्स। सो इन दैट सर माय फ्रेंड्स हेल्प मी बिकॉज दे यूज्ड टू लाइक करंट अफेयर्स एंड मुझे नहीं पसंद था, तो डिस्कशन से बहुत हेल्पफुल हुआ था ये। मतलब I did not used to read newspaper, very unconventional thing to अरे say. मैं तो क्या बैठा बड़े थंबनेल पे डोंट रीड, मैं तो बिल्कुल खुद मैं नहीं बोलता पढ़ा जाता वो, एंड फिर मतलब discussions really help I think. discussions and I think that belief कि अरे जो मैंने पढ़ा है स्टैटिक तो है ना, सब हाँ, स्टैटिक static बचाएगा बच जाएगा। is like good. सर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे क्या लगती है, सॉरी नहीं। सर क्या लगता है ना, आप जब ज्वाइन करते हो, जैसे मैंने स्टार्ट किया, किसी ने ये नहीं कहा न्यूज़पेपर पढ़ो कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ो और एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सर फिर भी हो जाती थी, एनसीईआरटी तो इंसान कर लेगा, बट न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसका एक गाइडेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज कोचिंग जस्ट स्टार्ट, न्यूज़पेपर पढ़ो और उसके नोट्स बनाओ। तो सर फर्स्ट ईयर मेरे नोट्स ऐसे रहते थे, 10-10 पेज के बनते थे, जो भी लिखा होता था एज इट इज आई यूज्ड टू कॉपी, बट वो लिंकेजेस बनाने होते हैं, उसकी एनालिसिस लिखनी होती है, उसको शॉर्ट करना होता है, ये किसी ने नहीं कहा कभी। आई थिंक प्राची कुछ मैं ये बोल रही थी कि प्रॉब्लम ये आती है ना कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ने जाते हैं तो न्यूज़पेपर को भी हम एक प्रेशर के जैसे पढ़ते हैं, जिसमें कोई आंसर निकालना है, कुछ आंसर राइटिंग के लिए करना है, तो वो जो एक न्यूज़पेपर का पूरा फील है वही खत्म हो जाता है कि वी हैव टू जस्ट रीड एज टू बी अ अवेयर सिटीजन। अगर हम वो करना शुरू कर दें ना, एक्सरसाइज नहीं है, तो फिर वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग प्रोसेस है न्यूज़पेपर पढ़ना, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग, और वही एग्जाम में डिमांड करती है, यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। सो वो वाले प्रेशर में जो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं ना, तो वो सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। सर उसमें दिक्कत क्या होती है, मैंने जब फर्स्ट मेंस लिखा तब मुझे लगा कि यार मैंने इतने न्यूज़पेपर नोट्स बनाए और कुछ लिख तो रहा नहीं, फिर रियलाइज्ड कि यार इसकी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू गेट द आइडियाज फ्रॉम इट। No, and on this point, I think जब तक मेरा थर्ड अटेम्प्ट आया तब तक न्यूज़पेपर पढ़ना was the fun activity of the day for me कि ये आधे घंटे अब मैं मजे के लिए पढ़ूंगा। मजा आया। So that's how, and I'm so surprised कि सबका यही रिएक्शन है कि सबने ऐसे गलत तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, and everybody बिकॉज़ सर इस पर कोई डिस्कशन नहीं होती है। मैं अभी तुम्हें बताऊंगा एक कहानी, आई थिंक नैंसी कुछ बोल सर ये जो ये बोल रहे हैं सर बोल रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाली चीज़ है तो सर आई वुड से कि ये चीज़ खुद डेवलप जब हम अंदर से करते हैं ना, पढ़ते पढ़ते सिलेबस देखते देखते, तब वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। कोई कितना मतलब मैं ऑल्दो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, बट जब वो खुद से डेवलप होती है ना तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा अब हमें समझ में आ रहा है कि ये चीज़ यहाँ डालनी है। फैक्ट्स एंड एनालिसिस में अलग होता है। जैसे मेजोरेना चिप पर जो क्वेश्चन आया, मेजोरेना चिप वो दिमाग में था कि हाँ ये पढ़ा है मैंने, तो उसके लिए मुझे लंबे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। तो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, एनालिटिकल एस्पेक्ट्स, कुछ थॉट्स, डेटा, तो वो सारी चीजों को सेपरेट करना बहुत बात समझ में। मैं तो ये कहूंगा यार एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल पढ़ लो फन के लिए, बिल्कुल। बट मैं आपको बताता हूँ जो मेरी एनालिसिस है, आई माइट बी रॉन्ग। मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो ये सुना एनसीईआरटी न्यूज़पेपर, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई दिस गाइडेंस इज बीइंग गिवन, है ना। अब मैं इस साइड हूँ, अब मुझे पता है व्हाई दिस गाइडेंस इज बीइंग गिवन। हो ही नहीं सकता कि नया बच्चा आए, एनसीईआरटी न्यूज़पेपर खुद से पढ़े और फिर उसको लगे कि मैं कर लूँगा। यू विल फील कि मेरे से नहीं हो रहा, एंड योर नेक्स्ट स्टेप इज getting a coaching ले लो। कोचिंग। It's a very good question. ये दिस इज माय एनालिसिस, आई माइट बी रॉन्ग, बट क्यों बोल रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? मतलब अगर देखो मैं जीएस3 पढ़ाता हूँ, जीएस3 से ज्यादा करंट अफेयर्स कहीं नहीं आता। अगर तुम्हें ही पढ़ना है तो मेरे पास आए क्यों? मतलब ठीक है, 750 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, मैं एक लाइन पढ़ता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ, कोर्स में पढ़ाता हूँ, एक लाइन पढ़ता हूँ। तुम्हारा काम थोड़ी है वो, राइट? इट इज माई जॉब। नहीं तो फिर मैं बैठा क्यों? देखो आई डोंट थिंक कोई भी एक ऐसी चीज है जो तुम खुद से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ ही नहीं।
मे बी आई वुड से साइंस एंड टेक में कोई एक आधी चीजें हैं जो बायो से रिलेटेड हैं, जो एक नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला बंदा उतनी ना समझ पाए, जो एक डॉक्टर आपको समझा सकता है। दैट्स वेरी लिमिटेड। अब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स में, है ना, एग्रीकल्चर में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मैं कहूँगा कि आई एम अ गुड स्टूडेंट हु इज सेविंग योर टाइम। इतना ही रोल है कोचिंग का। जो काम तुम 5 घंटे में करोगे या तुम एक दिन लगा दोगे, वो मैं तुम्हें 1 घंटे में दिखा दूंगा एंड इट विल हेल्प यू जस्ट एज मच। बट ये बात ओपनली अगर कोई बोल दे एंड मुझे लगता है वो जो करंट अफेयर्स पे कुछ ज्यादा ही ओवर एम्फेसिस कर दिया गया है यूपीएससी प्रिपरेशन एंड दैट इज, और अगर हम बैठ के आराम से देखें ना तो प्री हो या मेंस हो करंट अफेयर्स बहुत लिमिटेड है और हम लोग अपना पूरा टाइम बस करंट बहुत अफेयर्स majority लगा देते हैं। गया था सर उसमें, बाद में जब लिखने के बाद रियलाइज हुआ कि यार इसकी तो इतनी जरूरत ही नहीं है। राइट। अरे वो जब मेरा अनोनिमस चैनल था तो पहले तो चैनल उठेगा कैसे, मतलब वो चैनल एक्चुअली मैंने इसलिए बनाया था, आई डिडंट हैव अ स्टडी पार्टनर। तो आप देखोगे उसमें बस मैं ये रिकॉर्ड करता था कि मैं आज ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, ठीक है। फिर उस पर 1-2 कमेंट करे किसने कि सब प्री क्लियर हो गया तो बता दो। वो वीडियो पे कुछ एकदम से 1 लाख व्यूज आ गए, 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए मेरे, ठीक है। उस वीडियो में बोला, पहली लाइन क्या बोली है, अब आज भी वो वीडियो है, न्यूज़पेपर एक भी दिन नहीं पढ़ा, एनसीईआरटीज़ एक भी नहीं पढ़ी और नहीं पढ़नी होती। मतलब यार आप कैसे याद रखोगे, मतलब आप कह रहे हो आपको मैथ्स रहना याद है, बट इट इज मेबी बिकॉज ऑफ योर टेक्निक। बट मैं वैसे बता रहा हूँ, हर कोचिंग की कंपैरिजन है नजर, ठीक है। मतलब इट इज जस्ट अ टाइम इन्वेस्टमेंट कि यार आप उसको नॉर्मली पढ़ लो और फिर आप कंपैरिजन पढ़ लो, आपको कॉन्टेक्स्ट तो याद ही है ना। बट मुझे वही लगता है कि आप पहले बच्चे को बोलो ये न्यूज़पेपर पढ़, ये क्यों नहीं बता रहे यार तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो पहले। इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट द प्रेप, ठीक है, एंड आई थिंक विल स्टार्ट हियर, विल एंड हियर, बिकॉज़ मैं चाहूंगा सब लोग इसका अपने से जवाब दें कि अगर किसी को आज प्रेप स्टार्ट करनी है तो व्हाट इज द एडवाइस यू विल गिव, राइट। कि यार अच्छा कोई नया बच्चा है आपसे पूछ रहा है, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि यार मुझे प्रेप स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड आई डू फर्स्ट। शिवन सर की वीडियोस देखो। मतलब जो आप मैं जोक के लिए बोल रहा हूं। फिर उससे कि फर्स्ट करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। फोकस ऑन द स्टैटिस्टिक्स, सेलेक्ट द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू स्टडी फर्स्ट। जैसे आई थिंक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट्स मान लो न्यूज़पेपर्स के साथ ज्वाइन करें तो आप उनको पढ़ सकते, सो दैट यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू एंड ट्रस्ट योर सोर्सेज एंड फॉलो देम टू द टी। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं एंड देन दे फाइंड अरे मृणाल सर बहुत फेमस है, चलो उनका इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वेरी रॉन्ग। आई थिंक एट द एंड सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड वंस यू डिसाइडेड कि मुझे इन्हीं टीचर से पढ़ना है और आपने पढ़ लिया, देन चेंजिंग द सोर्स आई थिंक इट्स अ वेरी बिग फेयर चांस। हां सर, नहीं समझ आ रहा तो बात अलग है, बट एटलीस्ट गिव समबडी अ फेयर Correct, चांस, sir. राइट। And one more thing is, I think, at least for prelims, because that's a very difficult stage, the mindset needs to shift from answering the paper to solving the paper. I think it's more about understanding what the examination wants. There's a technique to solving the paper for the prelims rather than knowing how to answer it. तो वो PYQ analysis करके आते, जो मुझे third attempt लगा before I could start scoring 110 और इस range में. राइट। सर आई वुड से कि सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से करना चाहिए। ऑल्दो फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो बहुत फियर, मतलब अगर मेंस का कोई देखने जाता है तो लगता है कि कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। सो आई वुड से कि जैसे मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था तो मैंने ज्योग्राफी से ही स्टार्ट किया था एंड वो जैसे मैपिंग सर बना के करते थे तो मुझे ऐसा लगता था अच्छा मुझे कितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो मैं सबसे बात करती थी, ये बताती थी कि अच्छा मुझे ये नया पता चला, ये नया पता चला। सो आई वुड से कि जो भी इंटरेस्टिंग आपको सब्जेक्ट लगता है ना उससे स्टार्ट करो ताकि आपका एक इंटरेस्ट तो बिल्डअप हो जाए एंड देन फर्दर आप अगर आपको कोई मेंटोर मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है जो आपको गाइड कर सकता है। इन केस नहीं भी मिलता है तो फिर आई वुड से कि मतलब अगर कोई कनेक्शन बनता है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो खुद जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से स्टार्ट करके फिर धीरे धीरे सिलेबस को समझिए, PYQs को अगर देखते हैं। जैसे मैं बहुत डरती थी कि मैं क्वेश्चंस तब तक नहीं देखती जब तक मुझे सॉल्व करना नहीं आता, तो ये वाली चीज़ बहुत थी। लेकिन उस चीज़ को फियर को थोड़ा हटाना चाहिए ताकि हम पेपर को समझे तो एटलीस्ट कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द पेपर, तो वो धीरे धीरे इवेंचुअली ही बिल्डअप होगा। एंड देन फिर कोचिंग किसी को लेनी तो फिर पर्सनल चॉइस होती है, तो टीचर्स ढूंढती है, टीचर्स जो अच्छे हैं। तो आई वुड से कि अगर जैसे आप लोग जैसे हाईलाइट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किधर से क्या पढ़ना है, तो वो चीज़ अगर फ्रीली जो यूट्यूब्स पे अवेलेबल होती है वो बहुत हेल्प करती है सर स्टूडेंट्स को। सो दैट आई वुड से। सो आई से कि जितना टाइम हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ने में लगाते हैं ना,
उतना फर्स्ट टाइम हमें सिलेबस को पढ़ने में लगाना चाहिए, लाइक रीड सिलेबस फॉर 8 to 10 टाइम्स लाइक अ बुक, कि आप पहले सिलेबस ही पढ़ रहे हो स्टार्ट के डे में, तो यू गेट टू नो कि मेरे को फोकस क्या क्या चीज़ें पे करनी है, क्या होनी चाहिए। सेकेंड आई वुड से सर कि मतलब मैंने देखा है सब लोगों को, मैंने भी किया है कि हम ना वो ऐसा कि कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए, कुछ ये कर लें, यहीं से वो कलेक्ट कर लें, मतलब बैठ के इत्मीनान से टाइम लगा के स्टार्टिंग बुक्स पढ़ो। मतलब जब वो करते हो ना तो आपको वो आता है, क्लैरिटी खुद में आती है कि यहाँ से मैंने किया, यहाँ से वो एक बार की ही मेहनत है, बट उस मेहनत को करना इज लाइक द बिगेस्ट थिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे स्टार्टिंग बुक्स को अच्छे से पढ़ो और वो करो। एंड PYQs तो मतलब लाइक लीव एंड ब्रीथ बाय PYQs, so they are the only tools at prelims, mains, both the stages which can help you in qualifying. Also the only actual thing UPSC has given us other than the syllabus, बाकी तो सारा conjecture ही है। Right. Yes sir. Saksha. Sir, I think they have mostly covered all the points, and I totally agree. But one more thing, which like she has already covered, but I would say कि question करना is very important. I know बहुत डर लगता है कि वो मुझे नहीं आएगा तो मेरे को self doubt आएगा और कितने marks आएंगे etc. But just go through your static book once, or whatever times, however many times it helps you to remember it, and then just give the exam, because वो बहुत time लगता है खुद को push करने में, that push is जब needed. मैं ready हो जाऊँगा तब yes वो sir. ready कभी नहीं आता, वो ready जो एक होता I है ना mean, परफेक्ट आंसर मैं किसी दिन लिखूंगी, परफेक्ट आंसर, वो परफेक्ट आंसर तो I नहीं don't आता। think यहाँ पे कोई भी है जो कहेगा मैं तो perfect answer नहीं। लिख दूंगी या लिखूंगा या मैं तो अभी भी पूरी एकदम definitely give it. Nobody does that. Right. And just give the exam, and I think the shock factor which comes in with it is really important to see कि क्या पढ़ना है और क्या याद रखना है. So that shock factor, please take that shock, जिससे वहाँ पर shock ना लगे. So I think that I would like to add. सर सभी ने पॉइंट्स कहे हैं, मैम ने जैसे कहा सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू, क्योंकि दायरा पता चलता है कि पढ़ना कितना है। और दूसरी चीज़ सब PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज UPSC क्वेश्चंस आर वेरी साइंटिफिक। बिकॉज आप किसी भी टेस्ट सीरीज का देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लगेगा कि ये कुछ ज्यादा ही पूछ रहा है एंड यू डोंट हैव टाइम टू एड्रेस दैट, बट UPSC क्वेश्चंस व्हाट आई फेल्ट वाज वेरी वेरी साइंटिफिक। वो अगर 15 मार्कर है तो वो 10 मिनट में ही 8 मिनट में ही खत्म होंगे वो, क्योंकि उसमें ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे ही नहीं आपके, वो बिल्कुल डायरेक्ट रहता है वो समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे मैम ने कहा कि सही समय कभी नहीं आएगा। I was also this aspirant कि पढ़ लूंगा तब लिखूंगा, then I realized कि वो पढ़ना कभी नहीं होगा, वो रेडी कभी नहीं होगा और लिखाई कभी नहीं होगी, तो मार्क्स भी कभी नहीं आएंगे। तो ये मुझे एक अटेम्प्ट बाद लगा मेंस में, then I realized नहीं, लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेकारी आंसर्स लिखो, शुरू में 10 बेकार आंसर्स लिखे जाएंगे, but then उसमें रिफाइनमेंट होगी, and that will help you. So that would I suggest. PYQ was very important. Main I would prelims like में। to, sorry, हाँ। sir, I would like to add one more thing कि इसमें humble रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो सीखने को मिले just grasp it, उसे सीखो। Open to learning बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि मुझे सब आता है, ये कभी attitude नहीं रखना चाहिए। अब तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, एक अम्बेडकर सर से अगला मैं Right, I think yes sir. सर को कॉल आता है। But sir, at the same time, I would also like to add to that कि मेरा एक थोड़ा काउंटर ओपिनियन ये भी है कि बहुत सारे सीनियर्स हैं इस फील्ड में एंड सब लोग आपको अलग अलग एडवाइस देंगे, सुनना सबकी, बट डू व्हाट फील्स कंफर्टेबल एंड ओन स्किन टू यू कि हाँ आई एम ओके हियर, बिकॉज अदरवाइज इट जस्ट मेक्स थिंग्स वर्स। Very mechanical. We take it with Yes. a pinch of salt. Yeah. Directly you can't just क्या snake है तो हाँ. And you have to believe that the 900 people are getting selected and there are 900 ways of getting selected. Correct. यहाँ पे I think One everybody has simple- a different opinion. right? तो वो चीज की मतलब यही वाले टेस्ट सीरीज करने से सिलेक्शन होगा। मैंने इस अटेम्प्ट में ना प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज दिया ना मेंस का टेस्ट सीरीज दिया। सर ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ मैंने प्रीलिम्स का कोई टेस्ट सीरीज कभी नहीं किया। मैंने PYQ देखा है और जो क्वेश्चंस आते हैं डेली, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते थे वेरियस साइट्स पर, उसको मैं लगाता था, तो 10-20-30 क्वेश्चंस एवरी डे मेरे हो जाते थे ऐसे। बट मैंने कभी Everybody has a very भी different I think mindset. सेल्फ बिलीफ इज द आंसर। सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है कि आपने स्कूल में कैसी पढ़ाई की है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि मैंने अच्छे से 10th क्लास तक सोशल साइंसेस ये सब चीजें पढ़ी हैं, माय स्कूल से वेरी गुड, तो NCERT मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा ग्राफ्स बहुत अच्छा था, उसमें ग्राफ्स बहुत अच्छी थी। 10th-12th की मैंने पढ़ी थोड़ी सी, 12th वाली जो थी, बट उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी कभी। Before 10th तो मैंने कभी नहीं पढ़ी है। स्कूल वाली नॉलेज है अभी तक, वो भी मैं बता सकता हूँ किस पेज पे क्या लिखा पढ़ा हुआ भी है। देते ना स्कूल के बच्चों को। वो तो मैथ्स पढ़ाता था, वो मैथ्स पढ़ाता था। तो CSAT was never a Never failed. So anyway, I would just like to thank all of you for giving me these diverse perspectives and being so honest.
and taking out time for this. Again, huge congratulations. Thank you so much, sir. Thank you.